Hello, my dear students. In today's lesson, you are going to learn about non-finite verbs. In previous lesson, I have taught you about finite verbs and its types. If you have not gone through that lesson, go through it first and then come back to this lesson. Otherwise, something will be not understood by you. Okay? So, what are non finite verbs? Let's see. A non finite verb is a verb that is not finite. That means it is completely opposite of finite verb. Finite verb के केस में क्या था कि वो एक एक्चुअल वर्ब की तरह काम करता था, पर नॉन फाइनाइट वर्ब में वर्ब क्या है, ये एक वर्ब का ही फॉर्म है, पर वो काम करते हैं दूसरी तरह से, जैसे वो एक एडजेक्टिव की तरह और नाउन या एडवर्ब की तरह काम करता है एक सेंटेंस में. ठीक है. एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड वर्बल्स. दे आर आल्सो कॉल्ड वर्बल्स. ओके. सी, here are the types of non-finite verbs or verbals. You see the definition that a verb, non-finite verbs are that kind of verbs that does not function as a verb. It does not function as verb and they function as noun, adjective or adverb. ठीक है. What are the types of non-finite verbs or verbals? देखो, gerund, participle and infinitive. You must note down all this in your copy as well as example, so that next time you can see your copy and read it or revise it. Through this lesson, I will try to give you um, an overview of the whole topic about these three types of verbs: infinitive, gerund, and participle, so that next time when you will see any sentence, you can easily find out कि इसमें जो वर्ब यूज़ किया गया है वो इन्फिनिटिव है, पार्टिसिपल है या जेरांड है. एंड आई एम श्योर कि ये लेसन देखने के बाद आप ज़रूर वो फाइंड आउट कर पाएंगे. ठीक है. एट लास्ट आई हैव गिवन वन टेस्ट फॉर यू so that you can solve it and find out this kind of verbs. Before moving to the definition of these three types of verbs, let us read these three sentences. मैं अभी 3 sentences आपको दिखाऊंगी. You'll see and think about the sentences first. First में देखो, we enjoyed singing yesterday. Next है, I aim to convince him of our plan. Third है, we found him loitering around the school. In these 3 sentences, I have already marked in blue. These are all main verbs. You can see these are all main verbs. अभी आपको देखना है कि मेन वर्ब के अलावा भी आपको वर्ब का फॉर्म दिखने को मिलेगा. यू कैन ऑल्सो फाइंड सम अदर वर्ब फॉर्म्स इन दिस सेंटेंसेस जो मेन वर्ब से अलग है. ठीक है. जैसे देखो, सिंगिंग ये एक वर्ब का फॉर्म है, टू कन्विंस ये भी एक वर्ब का फॉर्म है, एंड लॉइटरिंग ये भी एक वर्ब का फॉर्म है. तो ये तो हुआ मेन वर्ब जो राउंडेड है, ये तो हुआ मेन वर्ब. और बाकी जो और एक वर्ब का फॉर्म है वो क्या है, वो यही है नॉन फाइनाइट वर्ब. दीज आर ऑल नॉन फाइनाइट वर्ब्स और वर्बल्स. As I have already told you, the types of non-finite verbs are infinitive, gerund and participle. Now infinitive का दो फॉर्म होता है, दो तरह का इन्फिनेटिव होता है. एक है बियर इन्फिनेटिव एंड एक है टू इन्फिनेटिव. हम लोग सभी के बारे में जानेंगे इसी लेसन में. ठीक है. जेरांड का कोई फॉर्म नहीं होता. इसका मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो है वी प्लस आई एन जी. नेक्स्ट में देखो, पार्टिसिपल का क्या क्या फॉर्म हो सकता है: पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. ओके. Now let's learn about infinitive. Infinitive
इज द बेसिक डिक्शनरी फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेसिडेड बाय टू। तो इन्फिनेटिव का फॉर्म है टू के बाद वर्ब का मेन फॉर्म, ठीक है, यही इसका फॉर्म है। एग्जाम्पल ऑफ इन्फिनेटिव विल सी नाउ, जैसे टू रीड, टू रन, टू जंप, टू प्ले, टू सिंग, to laugh, to cry and etc. So to plus main verb, ठीक है। Remember that although infinitives are verbs, they do not work as verb। ये verb का तो फॉर्म है पर verb की तरह काम नहीं करता, यही this is the most important thing about non finite verb, ठीक है। तो किसकी तरह काम करता है? sometime noun, sometime adjective की तरह and sometime ये adverb की तरह भी काम करता है। In the next slide we'll see some examine some example of infinitive. Here are some examples of infinitive in different roles. Okay, let's see. See, in all these sentences I have marked in orange color all the infinitive. So ऑरेंज कलर में इन्फिनेटिव ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, जैसे टू हेल्प, टू एजुकेट, टू ड्रिंक, टू बाई, टू राइट, टू बोरो। सो लेट्स सी व्हाट आर मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स को भी ढूंढ लेते हैं, चलो। आई वॉन्ट टू हेल्प हिम, सो दिस इज द मेन वर्ब वॉन्ट। टू एजुकेट माई ब्रदर इज माई गोल, सो इज द मेन वर्ब। गीता वॉन्ट्स जूस टू ड्रिंक, ये एक मेन वर्ब है, देखो आई एम राइटिंग एम means main verb. My father is going to market to buy fish, is going is main verb. Then I have a letter to write, this is main verb, and came, this is also main verb, ठीक है। Now we'll see the function of infinitive in these sentences. In the first sentence, this to help works as noun. I will tell you how. I want to help him. मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ? उसे हेल्प करना चाहती हूँ। So this is working as noun. तो आपने देखा कि इन्फिनेटिव नाउन की तरह काम करता है। नेक्स्ट में भी to educate is my goal. What is my goal? To educate is my goal. So this is also noun. Okay. Let's see the third one. Geeta wants juice to drink, ठीक है। Geeta wants juice to drink, उसे जूस चाहिए। तो दिस वाज मेन वर्ब जूस। वाई मतलब आई मीन जूस किसके लिए चाहिए, मतलब क्या करेगी, जूस लेके वो ड्रिंक करेगी। तो ये ड्रिंक जूस के बारे में बोल रहा है। ओके, द वर्ड ड्रिंक इज टेलिंग अबाउट जूस। जूस लेके क्या करेगी, वो ड्रिंक करेगी। सो दिस इज टेलिंग अबाउट जूस। तो दिस इज वर्किंग एज एडजेक्टिव, किसी के बारे में बोल रहा है। तो दिस इज वर्किंग एज एडजेक्टिव। नेक्स्ट में देखो, माई फादर इज गोइंग टू मार्केट टू बाई फिश। माई फादर इज गोइंग टू मार्केट टू बाई फिश, क्यों जा रहा है, ठीक है, किस लिए जा रहा है, फिश खरीदने। सो दिस इज working as adverb. So I have given two more examples. You have to find out which kind of function the infinitive is doing here. I have a letter to write and she came to borrow money. You can see infinitives are pointed, but you have to tell me what are the functions of infinitive here. Now listen to the main next point that I want to discuss with you. Sometimes infinitives are used without to. कभी कभी infinitive का use होता है to को छोड़ के, मतलब ये to नहीं लेता है कभी कभी infinitive। कब ऐसा होता है? Almost always infinitive begin with to, but infinitive lose their टू। इन्फिनिटिव अपना टू जो है वो लूज कर देता है, खो देता है, जब वो ये सब वर्ब्स के
बाद में आता है. सो यू मस्ट remember these verbs, very important. What are these verbs? Feel, hear, let, make, see, help, watch. Just learn this verb, learn these words. Okay, after these words infinitive अगर यूज करते हो तो आप to नहीं यूज कर सकते. ठीक है, let's see the examples. Okay, we heard the boy scream. देखो यहाँ पे जो मेन वर्ब है, here the main verb is hear. heard का मेन सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है. सो here the main verb is heard. तो मैंने बोला था कि here के बाद अगर verb यूज होगा, infinitive यूज होगा तो वो to नहीं लेगा. सो आई हैव नॉट रिटन to scream. जैसे we heard the boy to scream, ये अगर मैं लिखती तो ये गलत हो जाता. ओके, नेक्स्ट देखेंगे. माई फादर लेट अस गो टू सिनेमा हॉल. सो लेट के बारे में भी मैंने बोला था कि अगर लेट के बाद, अगर लेट मेन वर्ब है एंड उसके बाद अगर इन्फिनेटिव का यूज होगा तो वो टू नहीं लेगी. दिस इज ओनली गो, टू गो नहीं बोला है. माई फादर लेट अस टू गो टू सिनेमा हॉल, ये गलत है. ठीक है, नेक्स्ट में देखो. मोर एग्जाम्पल लाइक दे हेल्प्ड मी डू द वर्क, द टीचर मेड. जैसे हेल्प और मेक के बाद भी अगर हेल्प और मेक या सी या वॉच ये सब मेन वर्ब है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, वो टू नहीं लेगा. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स इज gerund. What is gerund? Gerund are non-finite verbs that act like noun. ये noun की तरह काम करता है. Very important. And they can serve as subject or object. देखो हम लोग जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, वो या तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम या तो सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं या ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं. कभी कभी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब या नाउन की तरह काम करते हैं. ठीक है, तो इसको हम कहाँ पे मिलेगा, जेरान को देखने को मिलेगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस में. ठीक है, जेरान ऑल एंड इन ing form. ing verb plus ing, जैसे skipping, reading, dancing, singing. So verb plus ing is the form of gerund, verb plus ing, and it works as noun. Note down in your copy, these are very important. Let's see the examples now. So examples, I was afraid of, ये off होगा. I was afraid of speaking French. So मुझे किस चीज़ में डर लगता था, स्पीकिंग. हियर स्पीकिंग इज एन एक्टिविटी, नेम ऑफ एन एक्टिविटी. सो ये वर्ब प्लस ing फॉर्म है एंड दिस इज वर्किंग एज नाउन. स्पीकिंग इज वर्किंग एज नाउन क्योंकि ये एक्टिविटी का नाम है, एक काम का नाम है. ठीक है, तो मैं अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट वर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज नाउन. तो वर्ब को अगर नाउन के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कोई वर्ब को, तो उसमें ing लगा सकते हैं और वर्ब के पहले टू लगा सकते हैं. जैसे इन्फिनेटिव में टू लगाते हैं, टू प्लस वर्ब. तो ऐसे हम लोग टू को वर्ब्स को नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही एडमायर्ड माई डांसिंग. वो मेरा कौन सा चीज़ एडमायर करता है, डांसिंग. सो दिस इज वर्ब प्लस ing फॉर्म एंड दिस इज ऑल्सो वर्किंग एज नाउन. ठीक है, एक चीज़ का नाम है डांसिंग, एक्टिविटी का नाम है. ठीक है, माई ग्रैंडपा स्पेंड हीज लाइफ इन हेल्पिंग अदर्स. कौन से चीज़ में वो अपना लाइफ स्पेंड किया है, हेल्पिंग, लोगों को हेल्प करना, ये भी एक एक्टिविटी है. सो वर्ब के बाद ing ऐड करने से आपको एक नाउन का फॉर्म मिलता है. ठीक है,
नेक्स्ट देखो, प्लेइंग चेस इज माई हॉबी। प्लेइंग चेस क्या मेरा हॉबी है? खेलना, चेस खेलना। सो ये भी एक एक्टिविटी का नाम है, एक एक्शन का नाम है। सो दिस इज ऑल्सो वर्किंग एज नाउन। ओके, आई लव प्लेइंग चेस, सेम वे दिस इज ऑल्सो verb plus ing and this is also noun form. Okay, now another thing about gerund, you should remember that gerund can be created using helping verb. मतलब वर्ब प्लस आईएनजी लगा के तो जेरान बनता है, तो वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब भी है, तो हेल्पिंग वर्ब में भी आईएनजी लगा के, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आईएनजी लगा के हम लोग जेरान बना सकते हैं। जैसे बीइंग डिसीव्ड कैन मेक समवन फीलिंग एंग्री। ये अभी देखो नाउन, मैंने बोला था कि जेरान का जो फॉर्म है वो नाउन की तरह काम करना, इसका काम है नाउन की तरह काम करना। या फिर बीइंग डिसीव्ड, ये नाउन की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, जैसे बीइंग डिसीव्ड कैन मेक समवन फील एंग्री, क्या किसी को एंग्री कर सकता है, कौन सा चीज़ किसी को एंग्री कर सकता है, तो आंसर आएगा बीइंग डिसीव्ड। तो ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैविंग रेड द बुक वंस बिफोर मेक्स मी मोर प्रिपेयर्ड। एक्चुअली दिस इज अबाउट द पोर्शन ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे देखो, दिस होल थिंग इज वर्किंग एज द सब्जेक्ट। ठीक है, एंड सब्जेक्ट में ये जो हैविंग है ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है और ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अंडरस्टूड? Now let's have a quick review of participles. A participle is a form of verb that is used in sentence as verb or adjective. फिर से बोल देती हूँ, हम लोग नॉन फाइनाइट के बारे में पढ़ रहे हैं और सारे नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह काम नहीं करता है। कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब का कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो वर्ब का ही फॉर्म है पर वर्ब की तरह काम नहीं करता है। तो ये कभी कभी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह और वर्ब की तरह भी काम करता है। पार्टिसिपल के केस में क्या है, पार्टिसिपल वर्ब की तरह भी काम करता है, कभी कभी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, नाउ 3 forms of participles in English are present participle, इसका फॉर्म है भी प्लस आई एन जी, एग्जाम्पल राइटिंग, सिंगिंग, रेजिंग, डांसिंग एट्सेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है भी प्लस V3, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे रिटन, सांग, रेज्ड। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है, जैसे इसका फॉर्म है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे हैविंग डन, दिस इज द एग्जाम्पल। Note down all this in your copy. Do not just watch the video. This is not entertainment video. This is class grammar lessons. I always tell this. Note down all this in your copy. See what is told here. Although they look exactly the same as gerund. अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो ये जेरान के जैसे ही दिखता है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, बट ये काम करता है एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह। ठीक है, जैसे देखो जेरान का फॉर्म है वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, एंड ये काम करता है नाउन की तरह। सिमिलरली प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है वर्ब प्लस आईएनजी, सेम फॉर्म, बट ये काम करता है एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह। ठीक है, राइट डाउन। विल नाउ सी सम एग्जांपल्स। सो मैंने बोला था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करते हैं। लेट्स सी हाउ। ये दो जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, स्लीपिंग गर्ल, द स्लीपिंग गर्ल ओवर देयर इज माई सिस्टर। तो
गर्ल शायद सो रही है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड, स्लीपिंग गर्ल। तो वर्ब प्लस आईएनजी है और ये डिस्क्राइब कर रहा है गर्ल को, सो ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, ब्रीदिंग हेवीली, शी फिनिश्ड द रेस एट फर्स्ट। ओके, सो ब्रीदिंग हेवीली, दिस पार्ट इज वर्किंग एज एडवर्ब, ठीक है। Next, I will show you an example of perfect participle and which works as adverb. Just say this one. See this example. Having finished my work, I left that place. This is example of perfect participle. Perfect participle. Okay. Having finished. Having plus verb third form. Let's move on and see the next slide about past participle. What are past participle and what are the examples of it? Past participle look like similar to simple past. ये simple past की तरह दिखता है, जैसे finished, danced, etc. However, some verbs have different form. जैसे irregular verbs में होता है वो अलग अलग फॉर्म्स होता है। पास्ट पार्टिसिपल का कोई सम एग्जाम्पल देखेंगे। द प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड बाय मी वाज स्टॉलन। द प्रोजेक्ट जो प्रिपेयर्ड किया गया है बाय मी वाज स्टॉलन। ओके, सो this prepared word is telling about project, so this is working as adjective. Okay, yesterday I found my lost gold chain. Lost verb का फॉर्म है, ये भी वर्ब का फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? गोल्ड चेन को। सो दिस इज ऑल्सो वर्किंग एज एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज चेंज्ड हर ब्रोकन फोन। इन दिस एग्जाम्पल आई विल टेल यू, मैंने बोला था कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Through this lesson, I tried to give an overview of these three types of non-finite verbs: infinitive, gerund and participle. एक रिवीजन ले लेते हैं इसका। तो जेरान का फॉर्म है वर्ब प्लस आईएनजी और ये नाउन की तरह काम करता है। पार्टिसिपल जो जिसका तीन फॉर्म्स होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है। सो ये क्या करता है, देखो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एंड इन्फिनिटिव जिसका फॉर्म है टू प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्या करता है, ये एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, ठीक है। I hope you will be able to identify now these three types of non-finite verbs in these sentences. This is a test for you. You check it, find out main verb and non-finite verb and also their type. कौन से टाइप का है, क्या ये infinitive है, gerund है, participle है। Believe yourself, you can do it. You can find out this kind of verbs in these sentences और ये आप ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। In next lesson or some in other lesson, I will explain about these three kinds of verb in more detail. Okay, that will be helpful for higher classes. So keep learning all the grammar topics and improve your language ability. And if you like the class and want more lessons of grammar, you can subscribe my channel and also write in the comment box what is the next topic you want me to discuss. Okay, another thing, nobody is sending me the homework that I am giving you through the lessons at the end of the lessons, so do that also. That will
help you in learning more. Thank you for attending the classes and goodbye.